अपने हाथों को उठाए हर एक जन, अपनी आंखों को बंद रखें। कहे परमेश्वर तू हमेशा हमारे संग है, तू हमारे साथ है खुदावन। हमें किसी चीज के, किसी शैतान से, किसी इंसान से हमें डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आप हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर आप हमारे साथ हैं तो खुदावन बीमारी हमारे अंदर नहीं रह सकती। अगर आप हमारे साथ हैं तो कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई रोग हमारा हिस्सा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते ऊंची आवाज बोले आमीन, आमीन। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाते हुए उस जिंदा परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कितने जन आनंदित हैं आज परमेश्वर की हुजूरी में। हमारा बिलीव है कि आज जो लोग आप परमेश्वर के घर में हैं, आज आपके बंधनों को टूटते हुए आप देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी गवाहियों को आज आप लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से, आत्मा में, विश्वास में रहते हुए आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने किस रीति से लोगों की जिंदगी में काम किया, कैसे उनको आशीषित किया, ब्लेस किया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। और आप भी जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, वो छोटा हो बड़ा हो, आपको अपनी गवाही जरूर देनी चाहिए ताकि अगली गवाही के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर सके। पीछे टीम बैठी, अगर अभी आप अपनी टेस्टिमनी को लिखवाना चाहते हैं तो पीछे जाके लिखवा सकते हैं। और जो टेस्टिमनीज अभी आप सुनेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से लोगों की जिंदगी में कार्य किए, उनको डिलीवरेंस दी, उनको चंगाइयां दी है, आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम हरप्रीत है। कहाँ के रहने वाले आप? मेरा पिंड जमशेर खास, डिस्ट्रिक्ट जलंधर है। और पिछले 22 साल से आप नशा करते थे? बिल्कुल। आप बताएं कौन कौन सा नशा करते थे और ये नशा शुरू कैसे हुआ आपके जीवन में? ब्रदर मैं जिस टाइम 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਬੰਡਲ ਫੂਕ ਦੇਣੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੋਤਲ 1.5 ਬੋਤਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਗੱਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ 200 400 500 ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ 1 ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ,
ਔਰ ਸੌਰੀ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਤੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਲਿਆ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਆ ਔਰ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। मतलब इतना ज्यादा नशा हाँ, कर लिया था, आपको होश नहीं रहती थी। होश ਰਹਿੰਦੀ नहीं सी। और उसके बाद आपकी दिमागी हालत भी खराब होना शुरू हो चुकी थी। मेंटली हो चुका था, मैं तांडव करता था। और जब भी ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਸ ਤਾਂਡਵ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਰੋਂਗ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ मैं बहुत परेशान सी। मतलब जितना भी पैसा कमाते थे वो सारा नशे में ही जाता था। नशे में ही। घर का माहौल कैसा था उस वक्त फिर? घर का माहौल तो बस ब्रदर ऐसे सी कि मतलब बच्चों ਨਾਲ भी लड़ाई झगड़ा, मदर ਨਾਲ भी लड़ाई झगड़ा, मतलब ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਉਹ। मतलब कहने का आप पूरी तरह से नशा करने के बाद आपकी जो मेंटली हालत थी वो भी खराब हो चुकी थी। वो पूरी तरह और खराब आपने हो कोशिश भी करी होगी कि नशा छोड़ दूं मैं। ब्रदर मैंने नशा छोड़ने की कोशिश तो बहुत करी है, लेकिन मतलब जैसे मान लो कि मैं ना ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ 5-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। पर लेकिन जो मैं बाथरूम च जाता सी उत्थे मैं 1.5 घंटा 2 घंटे नॉर्मली बैठा रहता सी, लेकिन बाथरूम आंदा ही नहीं। भाई का नशा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। आपको यहाँ का कैसे पता चला? अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ? वैसे ब्रदर मैं 2013 में जहाँ पे आता था और तब मेरी फैमिली पूरी आती थी, लेकिन मैं चर्च के बाहर से ही अपनी गाड़ी को घुमाकर वापस चला जाता था। मैं चर्च के अंदर नहीं आता था। मैं पास्टर जी का पापा जी का मतलब मजाक उड़ाता था और ये मजाक उड़ाया मैंने तो बस उसके बाद जो मेरी नौकरी और मेरी गाड़ियाँ 2 थी, मैंने एक कार थी मेरे पास, एक मेरे पास ट्रक भी मैंने ले लिया था, लेकिन जो ट्रक था वो भी मेरा ऐसे बिक गया और नशे में ही। और जो मेरी गाड़ी थी कार वो भी बिक गई, नौकरी भी गई। और उसके बाद मेरा इतना मेंटली मतलब मेरा काम हो गया कि मैंने 2-3 जो मेरे पास वाले गांव हैं ना वो भी मैं पैदल ही घूमकर अपने नशे के लिए अरेंजमेंट करता था भी मुझे नशा मिल जाए, लेकिन मैं पैदल चल के भी, क्योंकि मुझे कोई बाइक कोई साइकिल कुछ भी नहीं देता था कहीं हमारा बेच ना दे। फिर आपने जब चर्च के अंदर आप एंटर हुए 8 अक्टूबर 2023 की बात है और उस समय परमेश्वर के दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। हाँ जी ब्रदर, ये ब्रदर ऐसे हुआ कि जैसे मान लो कि जब बेदारी की प्रार्थना के पंपलेट बन रहे थे और सिस्टर मेरे सामने आई और मैंने सोच लिया कि मैंने बोला कि ये परमेश्वर के दास की जो फोटो है ना इस पंपलेट पे मैंने इसका मजाक उड़ाया हुआ है। अब मैं इसको ना पूरा अपने ओर से ऑनर देता हूँ। तभी से मेरे ना कुछ शरीर को हुआ जो मेरी बाजू ना गर्म होनी शुरू हो गई। उसी दिन से मैंने फैसला ले लिया कि आज के बाद मैं ना चर्च में पहुंच जाऊंगा। और मैं चर्च में आया और पहला ही फर्स्ट ही था, थर्सडे मीटिंग थी रात को। पापा जी ने भविष्यवाणी भी की थी कि एक भाई है कि उसको पता नहीं चलता भी मतलब इसको पवित्र आत्मा टच कर रहा है या कुछ क्या हो रहा है। तो इसी चक्कर में मैं फिर इग्नोर मार दिया। इग्नोर मारा तो वैसे मेरे को ना फिर जैसे मतलब 8 अक्टूबर तो बाद मैं मीटिंग अटेंड करता गया। मैंने वाइट कार्ड बनवा लिया। वाइट कार्ड बनवाने के बाद में जब फिर मम्मा जी से ले हैंड करवाई तब से जो मेरी लाइफ थी वो चेंज होनी शुरू हो गई और बदलती 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 मेरे पास बाइक भी आ गई, मुझे काम भी मिल गया, गाड़ी भी चलाने के लिए मिल गई।
लेकिन अब मुझे कोई भी किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। और अभी आप नशे से पूरी तरह से आजाद हो पूरी चुके तरह से हैं। नशे से भी आजाद हूँ। कितने समय से आजाद है पूरी तरह से? अभी कितने पूरा महीने? अब देख लो, 8 अक्टूबर के बाद फ्री हूँ। एक साल के करीब हो चुका है। हो चुका है और पूरी तरह से नशों से अभी आप आजाद हो चुके हैं। आजाद हूँ। थैंक्स करें परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आते हैं, वो डिलीवरेंस, वो छुटकारा जो आपको चाहिए उसी टाइम आपकी जिंदगी में एंटर करता है। आज जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में आप बैठे हैं, आप पहली बार आए हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, आज जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, वचनों को सुनेंगे, बिलीव करें, आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज अपनी गवाही को आप लेके वापिस आएंगे ऊंची आवाज में हालेलुया। सब उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। तो ये अगली गवाही अमृतसर चर्च प्रांत की सुनेंगे। इस बहन का नाम सुखविंदर है। इनकी गवाही के पिछले 13 साल से पीरियड के दौरान इस बहन को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी। ये बहन बता रही कि इनकी इतनी ज़्यादा गंभीर हालत थी कि एक दिन में 10-10 बार ये कपड़े चेंज करते थे और इस बहन का ब्लड सिर्फ 6 ग्राम रह गया था। उसके कारण बहुत ज़्यादा वीक थे, बीमार थे, तो कोई हल नहीं था, डॉक्टरी इलाज के द्वारा कोई हल नहीं हुआ। तो आज ये सिस्टर सुखविंदर अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। नजाब सी थी, मेरा नाम सुखविंदर कौर है। मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੂਨ ਪੈਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 10-12 ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ। 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ अन्य कामां ते गई, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਰੋਲਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾਂਚ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। प्रभु दे दास ने प्रार्थना की ते मैं उन्होंने रिसीव किया अपने वास्ते ते हल्का महसूस होया। हुण मैनूं कोई नहीं दुख बीमारी, मैं हुण पूरी तरह ठीक है, अपना घर दा सारा काम करदी हां। अपनी जिंदगी दे विच बहुत खुश हां। परमेश्वर दा धन्नवाद परमेश्वर दे दास दा भी धन्नवाद करदी हां ते सारिआं दा तारीफ करें क्लेसियस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 10 सितंबर 2023 को थर्सडे मीटिंग में जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने बीमारियों को डांटा, शर्मिंदगी को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा का स्पर्श इस बहन को मिला और वो 13 साल पुराना रोग, लहू बहने का रोग, वो शर्मिंदगी उसी दिन इस बहन को छोड़ के गई। अब 1 साल 1 महीना हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, गुड हेल्थ के साथ, बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया है। प्लीज तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देखिए कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े काम को कर रहे हैं, लोगों की शर्मिंदगियों को खत्म कर रहा है। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी मैदनीपुर ब्रांच से सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम पूजा कौर है और ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी उम्र 4 साल की है। 4 महीने पहले इनके बेटे को स्किन का रोग हो गया था जिसकी वजह से उसके पूरी बॉडी के ऊपर जख्म ही जख्म हो चुके थे। कपड़े पहनने में, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी, रोता रहता था और बहुत ज़्यादा उस इनके बेटे की कंडीशन जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो आइए ये आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सुनते हैं इनकी ज़ुबान से कि क्या बता रहे हैं ये अपनी बेटे की इस गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा कौर है, मैं वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर 4 से आज मेरा बेटा का गवाही मैं देने जा रही हूँ। आज मेरा बेटा का नाम खोकन कौर है और मेरा बेटा का उम्र अभी 4 साल है और 4 महीने पहले अचानक मेरा बेटा का फेस में जख्म बनना स्टार्ट हुआ और वो जख्म बढ़ते बढ़ते फुल बॉडी में फैलता गया
और वो जख्म से गंदगी बाहर आते थे और बॉडी में बहुत जलन होते थे। बच्चा रात भर सो नहीं पाते थे। कर मैंने डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि आम बात डिसीज का एक स्किन का रोग हो चुका है। मेडिसिन दिया और लोशन लगाने दिया। मेडिसिन खाया, लोशन भी यूज किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसी तरह मैं 2 डॉक्टर को चेंज कर लिया। 2 डॉक्टर ही सेम ही चीज कहा, अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा तो आगे से बढ़कर ये बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और मैं पहले से ही प्रभु के संग जुड़ी हुई थी। एपोस्टल जी जब प्रेयर कर रही थी स्किन की रोगियों के लिए, और मैंने मेरे बेटा के ऊपर हाथ रख के उसी प्रेयर को मैंने रिसीव किया बेटा के लिए, और इन बेटा के ऊपर ऑयल को अप्लाई किया। नेक्स्ट दिन से मेरा बेटा का जो बॉडी में जो जख्म था वो सूखने लगा। इतने दिनों से जो जख्म ठीक नहीं हो रहा था आज पूरा गायब हो चुका था। शरीर पूरा साफ हो गया। परमेश्वर ने मेरे बेटे को चंगा किया, हील किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें खुदावंद के अद्भुत बड़े कामों के लिए, क्योंकि सच में परमेश्वर चंगा करने वाला है, खुदा है। बेटे के इनके इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी, खुद परेशान रहते थे, रोते रहते थे। विश्वास प्रभु पे था क्योंकि चर्च के साथ जुड़े हुए थे, लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे। 29 सितंबर 2024 को जैसे ही खुदा के दास ने प्रार्थना की, ऑयल लगाया गया। प्रार्थना रिसीव करने के बाद तुरंत उसी समय कैसे खुदा की सामर्थ्य ने ऐसा छुआ, अगले दिन से वो बीमारी वो खत्म हुई। 1 महीना हो चुका इनका बेटा उस भयानक बीमारी से, उस रोग से बिल्कुल आजाद है। सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के अद्भुत बड़े जिन चमत्कारों के लिए खुदा का थैंक्स करें, इस बड़ी हीलिंग के लिए धन्यवाद दें। क्योंकि वचन बाइबल कहती है वो परमेश्वर खुदा वो कहता है मैंने तेरे लिए मार खाई है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। कोड़ियों ने, रोगियों ने उसके पास आके शिफा पाई है। आज अगर आप में से भी ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसी बीमारियों के साथ चल रहे हैं, लाइफ में ऐसी हालत है, उनकी कंडीशन ऐसी है, तो विश्वास करें सेम ग्रेस के नीचे हैं, खुदा की सामर्थ्य आपको छुएगी, खुदा आपको हील करेगा। आप देखेंगे खुदावंद की अद्भुत ग्रेस को, सामर्थ्य को उसके अपनी लाइफ में, और बड़े छुटकारे को ग्रहण करेंगे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें हाथों को उठाते हुए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? किन्ने राम, रहने वाले कहाँ के हैं आप? यूपी के हैं। नवंबर 2023 में एकदम से ये भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और इनको खाना पीना जो पचना बंद हो गया। तो डॉक्टर के पास लोकल ये गए, दवाइयाँ खाई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और तबीयत इनकी और भी ज़्यादा खराब होगी। आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही सांस लेने में दिक्कत होती है, लीवर भी परेशान हो गए थे, खराब हो गए थे, उठने की शक्तियाँ नहीं हो रही थी। मेरे बच्चे छोटे थे, बेटी दामाद ने उठाकर मुझे चलाते थे, चल रहे थे। बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ गए थे। लोग हैरान हो गए, घर के वाले प्राणी परिवार ने, सब ने कहा थे। मेरी छोटी सी बच्ची थी, वो मेरे लगे आकर रोती थी कि पापा क्या हुआ तुम्हें? हमने कहा बेटा कुछ नहीं, तुम मत रो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। कहे नहीं पापा तुझे, डॉक्टर के लगे बार बार जाकर कहती थी कि डॉक्टर मेरे पापा का क्या हुआ, डॉक्टर मेरे पापा के क्या हुआ। तो डॉक्टर ने कहता था कि बच्ची मत रोना, तेरा पापा ठीक हो जाएगा। तो डेंगू फिर वो ले जाकर जांच कराए तो बताया नहीं कि आपको डेंगू हो गए। मेरा परिवार बहुत निराश हो गए, बहुत परेशान हो गए। तब फिर जांच कराए गए तो दूसरे डॉक्टर के यहाँ गया, तो दूसरे डॉक्टर जब उसकी बस का नहीं हुआ तब वो डॉक्टर ने कहा कि भाई मैंने इलाज किया, ये मेरे बस की बात नहीं, जहाँ इसको मन चाहिए वहाँ ले जाइए। तो डॉक्टर वहाँ के आदमी, मेरे परिवार वाले ने बहुत बड़े निराश हो गए, इतना निराश हो गए कि अब संभरने की वक्त नहीं है। मेरी छोटी बच्चियाँ था मेरे गले में पड़ कर रो रही थी कि पापा हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, जब पापा आप चलेंगे तो हम भी साथ चलेंगे। हमने कहा बेटा ऐसा कुछ बात नहीं, तुम मत घबरा, हम ठीक हो जाएंगे। तो जौनपुर बीएस उपाध्याय डॉक्टर के यहाँ हमने भाग के गए
तो BS उपाध्याय डॉक्टर ने कहा कि आप मत घबराओ, आप मत घबराइए, आप ठीक हो जाएंगे। दवा होने लगी, दवा होते 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 जब दवा कंट्रोल, तो डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर क्या तुम्हारे प्लेट बहुत कम हो गए। इनके प्लेटलेट सेल जो होते हैं वो केवल 26,000 रह चुके थे और डॉक्टर ने जब चेक करा तो बताया कि पीलिया का रोग है, लीवर भी खराब होना शुरू हो चुका है और इसकी वजह से जब हॉस्पिटल से इनको लगातार जवाब मिलता गया तो इनको उस समय कोई होश नहीं रहती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। दवाइयाँ भी खाई, डॉक्टर हॉस्पिटल सब चेंज करके देख लिया, कोई आराम इनको नज़र नहीं आता था। और फिर जब ये परमेश्वर की हुजूरी में आए, परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। आप बताएं फिर कैसे आपकी हीलिंग हुई, कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी आपको? यहाँ तो लोग बताने लगे कि आप परमेश्वर का नाम लोग बताए तो हमने परमेश्वर का प्रार्थना की कि हे परमपिता परमेश्वर, तेरी मर्जी जैसी हो, मेरे बच्चों को सामने कोई नहीं है, आप तेरी इच्छा, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। वहां से हमने ठीक होना शुरू किया। और जब ये चर्च में आए तो 3 दिसंबर 2023 की बात है, परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी और उस मीटिंग में अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और ऑयल के साथ भी इनके ऊपर प्रेयर हुई। उस प्रेयर को हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। उस ऑयल को जो आपके हाथों में अपने माथे पे लगाओ, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता हूं सब प्रकार के रोग, सब प्रकार की बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहें। और जब प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और उसके बाद जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, इनका जब ट्रीटमेंट जो था डॉक्टर करके थक चुके थे और उसके बाद जब दोबारा इनको चेक किया गया, उसके बाद कोई इनको बीमारी नहीं थी, कोई रोग नहीं थी। आज 11 महीने हो चुके हैं, ये भाई उन बीमारियों से, उन रोगों से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर का थैंक्स करे जोर से तालियों के साथ। हर तरह के नशे से ये आजाद है, हर तरह की बीमारी से भाई आजाद है। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। तो ये अगली गवाही बरनाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम दिलजीत सिंह है। इनकी गवाही पिछले 7 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मक अटैक हो रहे थे। यंग उम्र में इस भाई के ऊपर अटैक होने लगे। लाइफ पूरी तरह से फेलियर थी, सपनों में अटैक होते थे, खेल आते थे, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थे। तो आज ब्रदर दिलजीत सिंह बरनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जैम्स दी, मेरा नाम दलजीत सिंह है। मैं बरनाला ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। डिप्रैशन के कारण मैं 3 ਤੋਂ 4 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, अपनी नब्जां नूं कट के और ट्रेन थले आकर फांसी ला के भी मैं अपने आप को मारने की कोशिश की। फिर मेरे गवांढियों द्वारा मैं खांबरा चर्च बारे पता लग्या। मैं खांबरा चर्च में लगातार आना शुरू किया। परमेश्वर के दास द्वारा की गई प्रेयर नूं मैं रिसीव किया। उस तो बाद अज मैं बिल्कुल ही फ्री हाँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा हाँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा हाँ। सारे तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 14 जुलाई 2024 को थर्सडे मीटिंग में जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा था, इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की चीफ भी सामने छुआ और वो 7 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। वो दुष्ट आत्मा का आखिरी दिन था, वो पाप का आखिरी दिन था। उसके बाद परमेश्वर ने इस भाई को बेस्ट लाइफ के साथ, बड़ी गवाही के साथ, पवित्रता के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अब 3 महीने हो चुके हैं, भाई पूरी तरह से आजाद है। थैंक्स करें परमेश्वर इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। कहाँ से आप? अमृतसर। अब आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। जब 13 साल की उम्र थी तो आप गलत संगति में चले गए थे। जी ब्रदर। और जिसके कारण आप व्यभिचार में चले गए थे। यस। आप खुद बताएं अपनी गवाही, कैसी लाइफ थी, क्या क्या हुआ आपके साथ? जब मैं 13 साल की थी तब मैं गलत संगति में चली गई, क्योंकि मेरे गली का जो माहौल था ना,
मतलब कि पूरा पाप भरा था, तो उस संगति में मतलब कि मैं पड़ गई और मैं पूरी तरह से व्यभिचार में चली गई। अपनी लाइफ को मतलब कि पूरा मैंने एक हिसाब से ख़त्म कर रखा था कि मैं अपनी फैमिली को भी ये चीज़ें बताने से हमेशा डरती थी, और साथ में मैं सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहना, गलत मूवीज़ देखना, उसका मिसयूज़ करना, हमेशा इस चीज़ का मैंने मिसयूज़ ही किया है। और इस चलते मैं डिप्रेशन में भी चली गई क्योंकि मैं इस चीज़ को अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाती थी और उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी, और मैं हमेशा इस डर में रहती थी कि पता नहीं मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी। बट तब भी मैंने कभी आज तक उनको ये बात शेयर नहीं कर पाई। और धीरे धीरे ये डिप्रेशन के अटैक बढ़ते गए, मेंटली अपसेट हो चुके थे आप। जी ब्रदर। और तरह तरह के ख्याल आपके मन में हमेशा चलते रहते। जी ब्रदर, इसकी वजह से मुझे नेगेटिव थॉट्स आने, जैसे सुसाइडल, 2 बार तो मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की यहाँ तक, और साथ में मुझे हमेशा नेगेटिव इतने ड्रीम्स आने की जो मैंने कभी सोच भी नहीं रखे थे, वैसे ड्रीम से मुझे इतनी गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देनी, और मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही जो मतलब चीज़ें मुझे दिखाई देती थी। और आपने मरने की भी कोशिश की, मन में ये आता था कि इससे अच्छा मैं अपने आप को खत्म कर दूं। जी ब्रदर। कैसे कैसे? एक बार तो मैंने मतलब ओवरडोज टैबलेट्स खाकर, और दूसरी बार मेरे घर में मतलब चूहे को मारने वाली जो मेडिसिन थी उसको खाकर अपने आप को मारने की कोशिश की। जी ब्रदर। आपका परिवार पहले से प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था, पर आप कभी भी चर्च नहीं आते थे? नहीं। और ना विश्वास करते थे? नहीं, मैं उतना डीपली नहीं थी। और फिर आपके परिवार, आपकी फैमिली आपको चर्च लेके आना शुरू किया उन्होंने? जी ब्रदर। जब आप चर्च आए, वचन सुना, गवाहियां सुनी, तो क्या लगा, क्या आया मन में? मतलब मैंने विश्वास करना शुरू किया, टेस्टमनीज को सुना, प्रीचिंग को सुना, वचन सुने, और मेरा विश्वास परमेश्वर में बढ़ा, और मैंने वाइट कार्ड बनवाया। 26 अक्टूबर 2023 को मैंने ले हैंड को करवाया। फिर 26 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर की दासी के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। जी। क्या हुआ उस प्रार्थना के बाद? फिर जब मैंने उस लेहन को अपने ऊपर ग्रहण किया तो मैंने उस चीज़ को रिसीव किया, और साथ में मतलब मैंने अपने आप को फ्री महसूस किया जब परमेश्वर की दासी का मेरे ऊपर हाथ आया तो। और उस दिन के बाद, प्रार्थना के बाद क्या बदलाव आया? अब लाइफ कैसी है वो बताएं। अब मैं पूरी पवित्रताई में हूँ, परमेश्वर के कामों को भी कर रही हूँ, सेवा को भी कंटिन्यू रख रही हूँ अपनी। परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। कितने समय से आप फ्री हैं अब? मुझे 1 साल हो गया पूरा। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया! हालेलुया! इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए, क्योंकि अब ये बहन प्रॉपरली अपनी लाइफ डेडिकेट कर चुके हैं खुदा को, बैप्टिज्म ले चुके हैं, पूरी पवित्रताई के साथ प्रभु के घर में रहते हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, परमेश्वर के इस बड़े अद्भुत सामर्थ के लिए जो छूता है, छुटकारा देता है। वो खुदा जीवत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो कहता है मैं बांधा गया तेरे छुटकारे के लिए। सच में वो बांधा गया था हमारे छुटकारे के लिए, जिसके द्वारा हम देखते हैं लाखों हजारों ऐसी टेस्ट नहीं जिनकी लाइफ में खुदा ने छुआ, ने आजाद किया है। पाप से, बुराई से, बुरे बुरे बीमारियों से आजाद करने वाला एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और इसी तरह से चर्च ब्रांचेस से टेस्टिमनीज है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया, फाइनेंशियल वेज इनके ओपन हुए। अबोहर चर्च ब्रांच से ब्रदर कुलदीप सिंह की टेस्टिमनी है कि ये जॉब चाहते थे और 6 से 7 कंपनीज में इन्होंने अपना रिज्यूमे दिया, लेकिन कहीं से भी कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था। और जब से ये चर्च में आ रहे हैं, अपने बीजों को इन्होंने वफादारी के साथ बोना शुरू किया, और एक अच्छी जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। बरनाला चर्च ब्रांच से सिस्टर अमनदीप कौर की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो काम किया, ये चाहते थे 5 साल से अपना प्लॉट लेना, लेकिन उस प्रॉपर्टी को ले नहीं पा रहे थे। और जब इन्होंने चर्च में आके अपने बीजों को बोया, अपनी घटी में, अपनी तंगी में भी, तो परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और नई प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। नडाला चर्च ब्रांच से ब्रदर राजा की टेस्टिमनी है कि 9 साल से ये अपना घर लेना चाहते थे और बहुत इन्होंने कोशिश करी, और 6 से 7 लाख रुपए इनके ऊपर कर्जा भी था। और जब ये चर्च में आए, अपने बीजों को बोया, और परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी कि आप हर तरह के कर्जे से आजाद होने जा रहे हैं, परमेश्वर का फेवर इनको मिला, डिवाइन हेल्पर्स मिले, और इनको परमेश्वर ने उस कर्जे से भी आजाद किया, और इनको अपने घर के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया है।
परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। बठिंडा चर्च ब्रांच से ब्रदर बलदेव सिंह की टेस्टमनी के 5 साल से इनके फादर के ऊपर नशा बेचने का केस था, और उसके बाद जो केस था इनके फादर की डेथ के बाद वो केस इनके ऊपर चलना शुरू हो चुका था। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उस केस से फ्री होने के लिए बहुत इन्होंने कोशिश करी, लेकिन जब परमेश्वर में इन्होंने चलना शुरू किया, अपना जीवन प्रभु को दिया और तौबा किया और परमेश्वर से वायदा किया कि आज के बाद दोबारा कभी उन चीज़ों में नहीं जाएंगे, तौबा करने के बाद परमेश्वर ने अपना फेवर इनको दिया और आज ये उस केस से पूरी तरह से आज़ाद है, डिलीवर है। परमेश्वर की तारीफ करें इन डिलीवरेंस के लिए जोर से तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मनीषा, रहने वाले कहाँ के आप? जयपुर राजस्थान से। सितंबर 2020 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद काफी खुश थे। कुछ समय के बाद ही इनको दुष्ट आत्मा के जो थे अटैक होने शुरू हुए। बहन आप बताएं जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स आपके ऊपर होने शुरू हुए क्या क्या होता था उस वक्त आपके साथ? दुष्ट आत्मा आमने सामने बातें करता था और जो भी हमारे घर में प्रॉब्लम होने वाली थी वो पहले आकर बता देती थी। फिर ये वो 2-3 दिन बाद मतलब हो ही जाती थी वो प्रॉब्लम की। और जब ये अटैक इनके ऊपर होने लगे तो ये खड़े खड़े ही गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे और दुष्ट आत्मा इनके साथ बातें करता था, खुली आंखों से नजर आता था और उस वक्त इनको कोई होश नहीं रहती थी कि ये कहाँ पे हैं और इनके हस्बैंड इनको पकड़ कर लेकर आते थे। और इस दौरान जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो पहली बार जब ये बहन प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी के 2.5 महीने में ही एक दिन जब ये सो रहे थे तो आप खुद बताएं जब सो रहे थे क्या हुआ आपके साथ उस वक्त? उस वक्त मुझे लगा कि मेरे पेट पे कोई नहीं किसी ने लात मारी है और पेट में दर्द होने लग गया था। फिर 15 दिन तक पेट में दर्द होता रहा। फिर हमने स्कैन करवाया ना तो डॉक्टर ने बोला बच्चे की हार्ट बीट नहीं है और इसी वजह से इनका वो केस खराब हो गया था। उसके बाद फिर ये 2022 में दूसरी बार फिर प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के कुछ टाइम के बाद ही सेम इंसिडेंट इनके साथ फिर हुआ। फिर ऐसा ही इनको सेम चीज़ हुई, नेक्स्ट डे ब्लीडिंग हुई और फिर से इनका जो केस खराब हो गया, मिसकैरेज हो गया और इनके साथ ये चीज़ बार बार हो रही थी। और डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में कि इसके पीछे क्या कारण है? कि डॉक्टर ने तो बोला था ये इन्फेक्शन है आपको यूट्रस में और दवाइयाँ भी इन्होंने लगातार खाई लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आता था। और इनकी फैमिली जब पूछती थी बच्चे के बारे में तो बहुत ज़्यादा ये रोते थे। फिर आपको यहाँ का कैसे मालूम हुआ अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में? यहाँ पे मेरी माँ से सॉस है जो आती है उन्होंने यहाँ के बारे में बताया। और जब ये चर्च में आए तो 24 सितंबर 2023 को जब ये चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने दोनों ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। नए बेबीज को आते हुए देख रहा हूं, नई बरकतों को आते हुए देख रहा हूं। आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी। और जब ये यहाँ से प्रार्थना को रिसीव करके जब घर वापस गए तो इस बहन को ब्लड की वॉमिटिंग्स आई, उसमें से बाल जो थे इनके वो बाहर आए और उस जादू टोने से परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया। और प्रार्थना के अगले महीने ही जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो ये प्रेग्नेंट थे 3rd टाइम और बहुत खुश हुए। और प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने संभाल के रखा और परमेश्वर ने हेल्दी बेटे के साथ इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। आज भी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आपके पास संतान नहीं, आपके मैरिज को इतने साल हो गए, वो डॉक्टरी रीजन है या वो जादू टोना है या वो दुष्ट आत्मा के अटैक्स हैं, आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में तो फेथ करें कि आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है और आज आपके आशीषित होने का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए और बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ऊंची ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। तो ये अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम सुनीता देवी है। इनकी होगी 9 महीने पहले सीढ़ियों से गिरने के कारण इस बहन की कमर में चोट लगी और जब डॉक्टर के पास गए
तो डॉक्टर ने बताया कि जिनके मन के पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुके थे और ये 24-24 घंटे ये बहन बेल्ट लगा कर रखते थे। तो आज ये सिस्टर सुनीता देवी पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। एमसी दी मेरा नाम सुनीता, मैं पठानकोट ब्रांच तो बोलनी है। 9 महीने पहले मैं डिग पई सी पौड़ियां तो, जिहदे कारण डिग्गन दे कारण मेरी रीढ़ दी हड्डी दे विच लग गई ही, जितों मैं झुक नहीं सी पा रही, चल नहीं सी पा रही, बैठ नहीं सी सकती। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं डॉक्टर कोल गई और डॉक्टर ने मेरे एक्सरे करवाए और उन्होंने मैनू कहा कि तुहाडे मणके जिहड़े उन्हां विच 3 मणकिਆਂ 'ਚ गैप आ चुका, जिस कारण तुहानूं बेल्ट लाने पैनी है। उन्होंने बेल्ट लगाई और मैंने दवाइयाँ भी दित्तियां और मैं बहुत सारी दवाई खाधी, कोई आराम नहीं मिलिया। बेल्ट लगन के कारण मैं कोई काम नहीं सी कर सकती। लगातार मैनू बैड ते ही रोटी पानी भी बैड ते ही, मतलब झुक नहीं सी सकती। मैं बाथरूम टॉयलेट जिते भी मेरे घर ते मैनू फड़ के लेंदे सी, छड़ी दे सहारे चलदी सी। 8 9 10 डॉक्टरों को दवाई भी खाधी, कोई आराम नहीं मैनू मिलिया। तो इन्नी कि दुखी हो चुकी सी, मैं सोचदी भी मैं कदी ठीक नहीं होना, कदी हील नहीं होना। पर मैं परमेश्वर दे नाल जुड़ी हुई सी, अंकुर रूला मिनिस्ट्री नाल पहला तो जुड़ी सी। चर्च ब्रांच विच गई, पापा जी ने प्रेयर की और दुखियां बीमारां दे लई प्रेयर की। मैं परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करदी सी और परमेश्वर दे दास ने प्रेयर की मेरे लिए और मैं उस दिन तो मैनू गरमाहट आई और उस दिन तो मैं चंगी हाँ, मैं हील हो गई हाँ और छड़ी भी छड्ड दित्ती गई और बेल्ट भी लत्त गई है मेरी। प्रभु ने मैनू चंगा किया और सारियां नू जय मसीह दी। तारीफ करे के लिए इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि इतना ज्यादा इनका भयंकर रोग था रीढ़ की हड्डी का कि ये बहन 24 घंटे बेल्ट लगाते थे और छड़ी का सहारा लेके चलते थे। लेकिन जैसे चर्च में 26 मई 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा, शर्मिंदगी को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से इस बहन की बॉडी में बल आया। इस बहन ने बेल्ट को उतारा, छड़ी को छोड़ा। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो पूरा रोग इन्हें छोड़ के जा चुका था। ये बहन बिना छड़ी के चल पा रहे थे, बेल्ट के उतारे बिना ये बहन झुक पा रहे थे। वो रोग शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। अब 5 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी मुकेरिया ब्रांच से सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम राहुल सोता है। 10 साल पहले ये भाई ऐसे दोस्तों के साथ इन्होंने रहना शुरू किया, उठना बैठना शुरू किया जो नशा करते थे, उनके साथ मिलके इन्होंने भी नशा करना शुरू किया। नशे में डे बाय डे बढ़ते गए। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं इनके जुबान से क्या कह रहे हैं ये अपनी गवाही में। मेरा नाम राहुल सोता, मैं मुकेरिया ब्रांच तो गवाही देने जा रहा अपनी कि 2014 में मैं बहुत ज़्यादा नशे करता था शुरू होया ते मैं गलत संगति का कारण मैं होर भी काम बड़े लड़ाइयाँ झगड़े सारा कुछ किया। मैं ये करके मैं बड़ा ही डिप्रैशन के रहन लग पाया। तो हौली हौली मैंने किसी साढ़े रिश्तेदार ने दसिया कि तू सांबा चर्च आ और उत्थे जाके मतलब वधिया फील होएगा तो वधिया लगता। तो उस तो बाद फिर मैं गया तो मैं गया सांबा चर्च, मैंने वधिया लगा। फिर मैं दवाइयाँ सुनिया, मैं लोगों की दवाइयाँ सुनिया, मैंने पता लगा कि ये सारा कुछ छड़ सकती है, मैं भी छड़ सकता हूँ। ये करके फिर मैं गया तो मैंने वधिया लगा। तो उस तो बाद फिर मैं दिन प्रतिदिन आना शुरू किया। हौली हौली मैं जो आया तो मैं 7 तरीक 7वां महीना 2024 में बैटरी में आने का फैसला किया। उस दिन मैं फिर बैटरी में रहा तो फिर मैं उस दिन तो पूरी तरह नशा तो आजाद सारे जन से। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई खुद राजमिस्त्री का काम करते थे और जितना भी कमाते थे वो सारा पैसा ये नशे में खर्च कर देते थे। एक दिन में 2-2 बोतल शराब की, सुबह से शाम लेट नाइट तक ये नशा करते रहते थे। कोलिप का नशा करते थे, जो भी कमाना नशे में, हर समय मन में यही लगा रहता था कि मेरा नशा कहाँ से आएगा। और इनका परिवार, इनकी फैमिली ने रोकती थी पर ये उनसे झगड़ा करते थे, ये उनकी बातें नहीं सुनते थे। डे बाय डे इनकी हालत जो खराब होती जा रही थी, डिप्रेशन में चले गए थे। छोड़ना चाहते थे, बहुत बार कोशिश की पर ये उन सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहे थे। प्रभु के बारे में पहले से जानते थे, खुदा के बारे में जानते थे पर चर्च के साथ नहीं अच्छे से नहीं, रिलेशन अच्छे नहीं थे, चर्च में नहीं आते थे। जब किसी ने बताया, लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियाँ सुनी, वचन सुना, विश्वास बढ़ता गया।
7 जुलाई 2024 को जब ये भाई चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, इन्होंने रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उस दिन से वो नशे का दुष्ट आत्मा, वो बड़ी शर्मिंदगी इसके जीवन से निकल गई। बैप्टिज्म ये ले चुके हैं। ये भाई 3 महीने से पूरी तरह फ्री हैं, आजाद हैं, नशे से एक कदम से कोई नशा नहीं करते। लाइफ टोटली बदल चुकी है। सब थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए। खुदावंत के नाम को महिमा दें, सब धन्यवाद दें खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए। सब जोर से तालियों के साथ खुदा का थैंक्स करें। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता है। रहने वाले कहाँ के आप? मिठापुर की। 4 साल पहले एकदम से आपकी तबीयत खराब रहने लगी। हाँ जी। आप बताएं आपको हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम हुई थी उस वक्त? मेरे को डॉक्टर बोलते थे नाक का मांस बढ़ गया है, फिर कहते ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करवाने के बाद भी मतलब नहीं ठीक हुआ, दवाइयाँ लगातार खाती रही। और इसके कारण आपको डेली रूटीन में क्या दिक्कत रहती थी? दिक्कत ब्रदर, मैं सो नहीं पाती थी और सांस लेने में भी दिक्कत आती थी और बच्चों के साथ भी बहुत परेशानी रहती थी। फेस लाल हो जाता था एकदम से, आंखें लाल हो जाती थी, खिजी सी रहती थी मतलब घर में। ऑपरेशन भी आपका हो चुका था? हाँ जी। उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम आपको हो गई? हाँ जी। और 3-4 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए थे? हाँ जी। फिर जब 3 अक्टूबर 2024 को इन्होंने जब मीटिंग को अटेंड किया तो उसमें परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई। और जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद से क्या हुआ फिर? उसके बाद से ब्रदर मैंने मतलब पूरी तरह से ठंडक से महसूस हुई। उसके बाद से मतलब महीना हो गया, मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सोने में भी मैं बिल्कुल सही हूँ, काम भी करती हूँ और खुश भी रहती हूँ। और जो सेकंड ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन भी कैंसिल हो चुका है आपका? हाँ जी, हाँ और अभी जी। आप बिल्कुल ठीक है, 1 महीने के करीब हो चुका हाँ है। जी, परमेश्वर की पूरी तरह तारीफ से करें आज़ाद इस जगह के लिए। उस सामर्थ्य हाथ रखने के बाद ये बहन पूरी तरह से हील हुए। ऊंची आवाज में सभी परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम कुलजीत रानी है और इनकी गवाही की 21 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया है। मेरा नाम कुलजीत रानी है। मैं गुरदासपुर ब्रांच तो गवाही देन जा रही हाँ अपनी दुष्ट आत्मा ਦੀ। मैं 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ, ਪਾਣੀ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਲੱਭਣੇ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਾ ਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਰ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾ ਲਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਆਊਟ ਆਊਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਬਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ गई। ਹੁਣ मैं बिल्कुल ठीक हाँ, फ्री हाँ। सारे ने जय मसीह दी तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस दुष्ट आत्मा से। तो 20 फरवरी 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो उस समय ये गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। 2 साल 8 महीने हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाते हुए इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैरी मार्गरेट जॉन है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं विलेज खिलजासली डिस्ट्रिक्ट सोलन की रहने वाली हूँ। हिमाचल के आप रहने हाँ वाले जी। हैं। आप खुद मेडिकल फील्ड में हैं हाँ जी। और 23 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था, उसके बाद अटैक्स आपके ऊपर होने शुरू हुए थे। हाँ जी। आप बताएं आपके बारे में, कैसे अटैक होते थे, क्या क्या चीजें आपको नजर आती थी, होता क्या था आपके साथ उस वक्त? एक्चुअली मुझे उस टाइम फर्स्ट टाइम विचक्राफ्ट का अटैक हुआ था, जिसका सिर कटा हुआ होता है, पर मुझे इतना उसके बारे में इतना पता नहीं था। तो जब मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन किया कि मम्मा मुझे ऐसा सा सपना आया है, तो मेरी मम्मा कहते कि प्रेयर करो, उस मतलब प्रेयर ही तुम करके ये चीज़ को हरा सकती हो। मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मेरा ट्रैक थोड़ा गलत था, लेकिन मैं जीसस को नहीं मानती थी, क्योंकि हमारे में मानते ही नहीं थे जीसस को। और उसके बाद जब वो चीज़ मतलब मुझे दिखने लग गई कि ऐसे मैं चल रही हूँ तो मेरे पीछे कुछ है, तो पीछे कुछ होता था, तो जब मैं पीछे मुड़ के देखती थी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। उसके बाद फिर मैं मतलब घबरा जाती थी, क्योंकि मैं अपने घर वालों से दूर थी और ट्रेनिंग में थी। तो मम्मी कहते थे कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। जबकि वहाँ पे मिशन हॉस्पिटल था हमारा कैंपस, वहाँ पे एवरी इवनिंग हमारी प्रेयर होती थी, तो वहाँ पे मुझे उस टाइम थोड़ा सा रिलीफ रहता था। लेकिन वो मैं सोचती थी कि पता नहीं क्या शोर करते रहते, क्योंकि मोस्टली हमारे चर्च में शोर नहीं होता था। और उसके बाद जब आपके ऊपर ये अटैक्स बढ़ने लगे थे तो आपका वेट गेन होने लगा उसकी वजह से, और डॉक्टर ने आपको क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम हो गई आपको जब आपने चेकअप करवाया? तो मेरे को हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज हुआ था, मतलब आज से 23 साल पहले की बात है। उसी टाइम मेरे को डायग्नोज यही हुआ था कि मैं हाइपोथायराइडिज्म मेरे को हो चुका है, और उस टाइम मेरा वेट 72 के करीब, 72 पॉइंट समथिंग था, लेकिन वो समथिंग मुझे नहीं पता भी, पर 72 था तब। उसके बाद जब वो मेडिसिन रेगुलर में लेती रही तो ऐसे ही मतलब, क्योंकि हर मेडिसिन का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, तो उसके बाद मेरे को 2013 में माइग्रेन डायग्नोज हुआ था, और माइग्रेन की मेडिसिन भी मैं लेती थी। मतलब थायराइड के बाद थायराइड एक एम्प्टी स्टमक लेनी पड़ती थी मुझे, और उसकी डोज 150 mcg। मतलब डॉक्टर चेंज नहीं किया, लेकिन एक ही डॉक्टर ने मेरी काफ़ी सारी मेडिसिन चेंज कर दी थी मेरी डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंगली। 2013 में जब मेरे को माइग्रेन डायग्नोज हुआ, तो वो माइग्रेन की अलग से मेडिसिन लगी, उसमें मेरे को वर्टिगो के अटैक्स आते थे, और कुछ भी खाती थी तो वॉमिटिंग आने लग जाती थी। उसके बाद ये होता था कि मतलब मुझे ऐसा होता था कि मेरे बाल कोई मतलब खुले छोड़ दूं, मतलब मेरे बाल तब बहुत लंबे थे, मैं बाल खुले रखती थी कि मेरे को बाल नहीं बांधने अपने। बट उस प्रोफेशन में थी कि मेरे को अपने आप को प्रेजेंट करना ऐसा था कि तो मेरे को बन बनाना पड़ता था। बट एनी हाउ वो बनता था, लेकिन मैं बीच में अपनी ड्यूटी ऑफ करके अपनी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेके अपने रूम में आ जाती थी कि मैं बेटर फील नहीं कर रही। और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। हाँ जी। सर्वाइकल आपको हो गया, उसके बाद माइग्रेन हो गया, वॉमिटिंग्स आना, शरीर में हमेशा वीकनेस रहनी। दवाइयाँ आपने चेंज करके देख ली थी, लेकिन मेडिसिन से भी कुछ खास आपको फर्क नजर नहीं आता था, और मेडिसिन के ऊपर भी लाखों रुपए स्पेंड कर चुके थे और हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते थे। मतलब आपको कोई होप नहीं थी उस वक्त कि मैं ठीक हो पाऊंगी? बिल्कुल भी होप नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने ऐसा डायग्नोज निकाल दिया था कि ये डिजीजेस ऐसी हैं, हार्मोनल डिजीजेस हैं, कि ये ठीक नहीं हो सकती। जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपने ये मेडिसिन खानी है। तो मैं खाती ही रही थी, पर फर्क कुछ नजर नहीं आता था उससे। आपको यहाँ का कैसे मालूम हुआ अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में? यहाँ पे एक सिस्टर थी, मैंने 25 दिसंबर 2023 में मैंने मतलब उन प्रॉफिट दीदी से पूछा था कि मेरे को किसी जीवित चर्च जाना है, मैं पुराने वाले चर्च नहीं जा सकती अपने। जब और उन्होंने फिर अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ का बताया था, तब मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ के लिए अनअवेयर थी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई उस दिन 25 को, तो मेरे को एक मतलब ऐसी मेरे को कवरिंग अपने बाउंड्रीज में क्लियर हुई कि मतलब मेरे को किसी ने एक होलीनेस ने घेर दिया है कि मेरे कुछ भी मेरे साथ अनक्लीन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब उस दिन मैं बहुत रोई थी, जबकि मैं फेस्टिवल्स पे कभी नहीं रोती,
लेकिन उस दिन मैं बहुत बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। क्योंकि जब ये चर्च में आए तो होली स्पिरिट ने इनको टच किया, पवित्र आत्मा ने छुआ, और उस मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रेयर करी, तो पूरे फेथ के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया था। आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर हर एक आत्मा, जादू की, टोनों की, बीमारियों की, कंफ्यूजन की, सेटबैक की, फेलियर की, निराशा की, आउट हो जाए। कमांड करेंगे। आप बहन बताएं कि जब आपने प्रेयर को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ, उसके बाद क्या हुआ, क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में? मेरे को जीसस का जो स्पिरिट है वो अपने ऊपर मैंने मतलब उसको ग्रहण किया, और जब ग्रहण किया तो आपको पता है कि एक होली चीज़ अगर आप में आती है तो वो आप एक अनदर लेवल पे चले जाते हो। तो उसका वो जो ऑरा है वो तो सबसे डिफरेंट है, उसको तो कोई माप ही नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ जीसस का कि उन्होंने मेरी ये इतनी भयंकर डिजीज़ेस को जो हार्मोनल थी, जो ठीक नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो ठीक हुई हैं। थैंक यू जीसस। और अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक है, इन चीज़ों से फ्री हैं आप? 10 मंथ्स से मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिसिन बंद हो चुकी है? हाँ जी बिल्कुल। सब तारीफ करें और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस हीलिंग के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो ये अगली गवाही अजनाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बैंक का नाम कलशो है। इनकी गई पिछले 8 साल से इनके पूरे परिवार के ऊपर डेथ की स्पिरिट काम कर रही थी। 2017 में इनके बेटे की डेथ हुई हार्ट अटैक के कारण जवानी में ही, और 2020 में सेम अटैक इनके हस्बैंड के ऊपर होने लगे, उनकी भी डेथ हो गई। और उसके बाद इस बहन के ऊपर, इनके बेटे, इनके बहू के ऊपर हमेशा अटैक होते थे। पूरा घर हमेशा ये डरे डरे रहते थे, डर का माहौल बना रहता था। तो आज ये सिस्टर अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, तो ये पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम कलाशो, पिंड मोदो खोखर दी मैं रहने वाली हूँ। मेरे जीवन की गवाही जी है मैं अजनाला ब्रांच तो अज देने वास्ते जा रही हाँ। मेरे घर दे विच 10 स्पीड जी काम करती ही। मेरे घर दे विच नशे, विविचार की आत्मा, जादू टूने, खुदियां अखां दे नाल मैं शैतान नूं वेखदी सी। मेरे घर दे विच बहुत सारे जिहड़े लड़ाई झगड़े हुंदे ही। मेरे घर दे विच बीमारियां भी मेरे घर दे विच बहुत ज़्यादा। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹੋ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਜਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਵਿਵਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਨੌਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਹ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ LCD ਦੇ ਦੁਆਰਾ खुदा दे दासां दा वचन जेड़ा सुनते रहे जी। जदों 10 स्पीड नूं डांटदे, नशे दी दुष्ट आत्मा नूं डांटदे ही, गंदे दुष्ट आत्मा जो जिंदगी विच काम करदे उन्हां नूं डांटदे, तो मैं अपने घर परिवार लई जड़ियां रिसीव करदी ही। उसे दिन तो असी मैं मेरा घर परिवार सब फ्री है। मैं परमेश्वर दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां, खुदा दे दास दासी दा धन्नवाद करदी हां। सारिआं नूं जय मसीह दी तारीफ करे, बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन।
तो मैंने बता रहे फिर 21 मार्च 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये मैंने बता रहा कि जैसे परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, डेथ की आत्मा को डांटा, डर की आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया और जो 8 साल से डर इस पूरे परिवार के ऊपर जो अटैक हो रहे थे, उसी दिन वो डर का आत्मा, वो अटैक खत्म हुए, पूरे परिवार को परमेश्वर ने आजाद किया। अब 3 साल 7 महीने 10 दिन हो चुके, पूरा परिवार आजाद है, कोई अटैक नहीं होते, कोई बीमारी नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ, शांति भरी लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस पूरे परिवार को बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। के लिए तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े कामों को कर रहा है, लोगों को स्वर्ग की शांति दे रहा है, उनके रोगों को खत्म कर रहा है। तारीफ करते रहे सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम ममता है और मेरे बेटी की गवाही है, मैं देने हूँ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? लुधियाना से। 1.5 साल की आपकी बेटी है और 5 महीने की जब थी वो बेड से गिर गई थी। हाँ जी, हाँ क्या जी। हुआ था उसको बताएं उसके बाद फिर। वो खेल रही थी, अभी उसने पलटना स्टार्ट किया था और वो पलटी तो वो गिर गई बेड से और उसके ब्रेन में चोट लग गया था, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में क्लॉट आ गया था, जो डॉक्टरों ने बताया था, क्योंकि उसको एक साइड वो बिल्कुल मूव करना बंद कर दी थी। तो हमने तो सोचा कि शायद ऐसे नॉर्मली चोट वोट लगा होगा, हमने डॉक्टरों को 1-2 डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बेबी को चोट लगा हो, जिसकी वजह से वो डर के हिला नहीं रही है, मूव नहीं कर रही है। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम हो, इसलिए हमने उसको पेन किलर्स वगैरह दिए और 3 दिन तक ऐसे ही करते रहे, एक्सरे भी करवाया कि कहीं हड्डी टूट गई हो या कुछ हुआ हो, पर ऐसा कुछ नहीं था, जिसकी वजह से हम परेशान थे कि ऐसा क्यों कर रही है ये। फिर उसके तीसरे दिन इसको दौरे पड़ने लगे और हमने हमारे जो लोकल डॉक्टर था एक, जिनको हमने दिखाया, तो उन्होंने जब इसको देखा कि उसको दौरे पड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा इसको फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाओ, क्योंकि इसको 5-5 मिनट पे दौरे पड़ रहे थे और बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डर गए थे कि ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि ऐसे आंखों को ऊपर चढ़ा के और एकदम अकड़ जाती थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, दोनों लोग हस्बैंड वाइफ, और सबको छोड़ के, दोनों हमारे 2 बच्चे और हैं, उनको हम घर पे ऐसे ही छोड़ के फटाफट भाग गए हॉस्पिटल को लेके। उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसको कम से कम 20-25 बार दौरे पड़ गए। और जब दौरा पड़ता था तो इसके हाथ पांव मुड़ जाते थे उस समय? अकड़ जाता था बिल्कुल, एकदम आंखों को ऐसे ऊपर के साइड उठा ले, बिल्कुल चढ़ा लेती थी और एकदम अकड़ जाता था। और जब MRI हुई इस बच्चे की, CT स्कैन हुई, डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन में ब्लड के क्लॉट्स जम चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इसी वजह से राइट साइड शरीर जो है वो पैरालाइज हो चुका है। ट्रीटमेंट किया, उसके बावजूद भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। फिर कैसी कंडीशन थी बच्ची की उस समय? बिल्कुल ऐसा था कि मतलब वो राइट साइड को बिल्कुल नहीं मूव करती थी और वो ऐसे मतलब सीधा रखती थी, हम उसको हिलाते थे, अगर जबरदस्ती करने की कोशिश करते थे तो रोती थी। और डॉक्टर का कहना था कि पूरी बॉडी जो है इसकी पैरालाइज हो सकती है पूरी लाइफ के लिए। हाँ जी, वो कह रहे थे कि जैसे कि उन्होंने कहा था कि जैसे इसके ब्रेन में अगर ये क्लॉट बनता गया, ब्लड कहाँ पे इसको इंजरी हुई है कोई पता नहीं है, तो वो कह रहे थे कि अगर ये ब्रेन पे इसके दबाव पड़ा तो इसका बॉडी भी पैरालाइज हो सकता है। तो आपको डॉक्टर चेंज करके देखना चाहिए था। डॉक्टर के पास गए किसी और डॉक्टर के पास? नहीं, हमें परमेश्वर पे विश्वास था। और क्योंकि पहले से ऑलरेडी ये 4-5 डॉक्टर चेंज करके देख चुके थे, जब कहीं से कोई बात नहीं बन पड़ी, और अपनी बच्ची के फ्यूचर को लेकर भी अब काफी ज्यादा परेशान रहते थे, हर तरह का ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, फिर कैसे परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया, कैसे चंगाई मिली? इसके लिए जब भी यहाँ से प्रार्थना होती थी, मैं ऑनलाइन देखती थी ज़्यादातर, क्योंकि ये छोटी थी, मुझे लेके आने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो ऑनलाइन देखते थे। जब भी यहाँ से प्रार्थना करते थे कि पैरालाइज या ब्रेन की प्रॉब्लम सही हो जाए, तो मैं उसको रिसीव करती थी और ऑयल लगाती थी और विश्वास रखी कि खुदा ही इसको चंगा करेगा। और जब 18 अगस्त 2024 को मीटिंग अटेंड करे थे और परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल अपनी बच्ची के ऊपर अप्लाई किया। उस वक्त उस प्रेयर को हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। उस ऑयल को अपनी बीमारी वाली जगह पे लगा लो, अपने सिर पे लगाओ, अपनी बॉडी पे लगाओ, पैरों पे लगाओ, घुटनों पे लगाओ, जहां रोग है वहां लगाओ, मसा चाहिए माथे पे लगाओ। उस अभिषेक को
मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं जैसे ही वो ऑयल तुम्हारे सिरों पे जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जब आपने अपनी बच्ची के लिए इस प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल इसकी पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, क्या हुआ उसके बाद इसकी बॉडी में एकदम से? इसके बॉडी में जैसे कि इसके राइट साइड मूव करने लग गई और धीरे धीरे करके इसके मैंने पिछले दिनों में देखा कि मतलब ये चलना स्टार्ट करने लग गई अपने आप से छोड़ के, और मतलब अपने बिना पकड़े हुए भी चलने लग गई जैसे नॉर्मल बच्चे चलते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती। मैं परमेश्वर का इतनी मैं करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसे ऐसे देखती थी ना मैं बहुत रोती थी। कई बार तो पूरी मीटिंग देखते देखते मैं रोती ही रहती थी कि मेरी बच्ची ऐसी क्यों हो गई, ऐसा क्या हो गया, मेरा खुदा उसको चंगा करेगा। मैं प्रार्थना करती थी कि खुदा इसको तू ही चंगा करेगा। और अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? 2-2.5 महीने से ये बिल्कुल ठीक है, चल भी रही है। और जबकि डॉक्टर ने बोला था कि एक भी दिन ये मेडिसिन के बिना नहीं रह सकती हाँ है। जी हाँ जी, उन्होंने कहा था लाइफ टाइम एक दवाई इसकी चलेगी ही चलेगी। और इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया परमेश्वर ने, और आपकी बच्ची जीवित है और पूरी तरह से हील है। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इक्लेसिया ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। सब जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। प्लीज अपने हाथों को उठाएं सब जन स्वर की ओर, सब भाई सब बहनें अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर, अपनी आंखों को बंद करके हे परमेश्वर मैं तेरे सिवा कुछ भी नहीं हूँ खुदावन, मैं सचमुच खुदावन तेरे सिवा कुछ भी नहीं हूँ खुदावन। आई एम नथिंग विदाउट यू जीसस। परमेश्वर मैं अपना सब कुछ तेरे आगे समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ लॉर्ड। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं।